السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور آپ کا میزبان علی رضا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر پیش ہوا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جناب خستہ حال شہر ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، مگر یہاں پر جو چلان اور ای چلان بالخصوص جو قانون نافذ کیا جا رہا ہے وہ ترقی یافتہ شہروں کے حوالے سے جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کے رکن صوبائی اسمبلی عامر صدیقی صاحب انہوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے اور آواز بلند کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ جب تک اس شہر کی سڑکیں بہتر نہیں جاتی تو اس حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر جو ہے وہ نافذ العمل نہیں بنایا جائے اس معاملے کو، اور دیکھا جائے کہ جو ٹریفک چلان کا معاملہ ہے، کیونکہ ایک غریب آدمی اتنے بھاری بھرکم چلان کیسے بھرے گا، یہ مدعا انہوں نے اٹھایا ہے۔ اس پہ ہم تھوڑی سی چرچا کر لیتے ہیں۔ آج عامر صدیقی صاحب جو کہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا۔ عامر صاحب بہت شکریہ۔ بڑا دلچسپ جملہ لگ رہا ہے کہ جی خستہ حال سڑکیں ہیں، شہر خستہ حال ہے، تو اس پر جو قوانین بنائے جا رہے ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک اور شہروں جیسے ہیں، تو تھوڑا سا بتائیے گا۔ یہ جمع تو کرا دیا گیا ہے لیٹر، اس پہ آواز بھی بلند کر دی گئی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ رک سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا۔ دیکھیں، سلسلہ اس طرح سے ہے کہ لیٹر نہیں ہے، یہ ارجمنٹ موشن ہے۔ ہمارے پاس اسمبلی کا فورم ہے، ہم اسمبلی کے اندر ہر چیز بول آتے ہیں۔ جو خالصتاً کراچی کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور سندھ گورنمنٹ مستقل طور پہ کراچی کی عوام کو زیادتیوں کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ 1 اکتوبر کو ایک آرڈر ایشو ہوتا ہے جس کے اندر سارے چارجز بڑھائے جاتے ہیں۔ تو کیا ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں؟ کیا ہم تو آج افغانستان سے بھی پیچھے ہیں، بلوچستان، ہمارے چاروں صوبے سب سے پیچھے ہمارے انفراسٹرکچر ہو چکا ہے۔ تو کیا ہم دبئی کی طرح ہو گئی ہیں ہماری سڑکیں؟ کیا لنڈن کی طرح ہو گئی ہیں؟ کیا ہم مڈل ایسٹ کے کسی ملک سے آگے نکل چکے ہیں؟ میرا شہر جو ہے، جو سندھ کا کیپٹل کراچی ہے، کیا وہ ان سارے صوبوں سے، یورپ، امریکہ سے آگے جا چکا ہے؟ تو وہ ظالمانہ وہ کہہ رہے ہیں عمل کیا ہے آہستہ سندھ آہستہ گورنمنٹ نے۔ ترقی ہو رہی ہے نا عامر صدیقی صاحب، اب آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو چیز ہو رہی ہے بہتر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیوں رکاوٹ ڈالی جائے، کیوں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے؟ دیکھیں رکاوٹ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ نے بچوں سے کتابیں چھین لی ہیں، آپ کے اسکول بنجر ہو چکے ہیں، آپ عوام کو دے کیا رہے ہیں ٹیکس لینے کے بعد؟ جو ٹیکس لینے کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد سندھ گورنمنٹ کو پیسہ مل رہا ہے NFC ایوارڈ کے تھرو، ہر مہینے اربوں روپے جو ملتے ہیں، تو سندھ گورنمنٹ عوام کو کیا دے رہی ہے؟ کیا نہ ہمیں تعلیم مل رہی ہے، نہ صحت مل رہی ہے؟ صرف عوام کی جیب سے ٹیکس کے نام پہ سر پیسہ یہ تو نکالا جملہ جاتا ہے۔ آپ نے بھی سنا اور اس ہوگا، کے بعد دنیا آپ بھر مجھے سے بتائیں کہ جس کی تنخواہ 40,000 ہے، اگر جب آپ کے روڈ پہ چوک چوراہوں پہ سگنلز نہیں ہے، تو جہاں سگنلز نہیں ہے تو وہاں ٹریفک پولیس کو آپ نے ایک ہتھیار ہاتھ میں دے دیا ہے، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، کہ آپ جس سے چاہیں 5,000 کا چالان کاٹیں، جس کا چاہیں 20,000 کا چالان کاٹیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ اتنی خطرناک پنشمنٹ دی جا سکتی ہے جب آپ کے پاس ٹریفک قوانین کے اوپر عمل، آپ کی جو ٹریفک پولیس ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے، ٹریفک سگنلز آپ کے روڈز پہ نہیں ہیں، جو لگے ہوئے تو وہ آلموسٹ بند پڑے ہوئے ہیں، آپ کا انفراسٹرکچر تباہ کن حالت میں ہے؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دوران ہم نے اس کو ختم کر، ہم کہتے اچھا ہیں محمد، کہ آپ نے ٹیکس، آپ نے چالان کے پیسے بڑھائے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے MCOM پاکستان کا کہ آپ فی الفور اس کو سسپینڈ کریں جب تک کہ آپ کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوتا، جب تک آپ کے سگنلز کمپلیٹ آن نہیں ہوتے، جب تک آپ ٹریفک پولیس کی کیپیسٹی بلٹ اپ نہیں کرتے، جب تک آپ ان کو ٹریننگ نہیں دلواتے، تو کیا آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ شہر کی عوام کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں؟ اچھا عامر صاحب، جب ہم نے ان سے موقف لیا تھا اور اس حوالے سے ہماری بات چیت بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب سب سے پہلے تو نا ہم نے اب اہلکاروں کے ہاتھ سے ڈیوائسز لے لیے جو چلان کرتے تھے نا، اب ہم کیمروں کے ذریعے جو ہے نا وہ چلان جو ہے وہ ریکارڈ کیا کریں گے اور وہ گھروں پر آئیں گے۔ دوسری چیز کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سڑکوں پر جو صورتحال ہے اس کے اوپر لیٹر لکھا جا چکا ہے اور اس وقت جو ہے وہ بجٹنگ ہو رہی ہے کہ جی ہم سڑکوں کی بھی بہتری کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جناب کہیں سے تو یہ شروع کرنا ہے نا، تو اب یہ آغاز ہو رہا ہے کیونکہ جو مسافر ہیں، موٹر سائیکل سوار ہیں، وہ بہت ان کے لیے چھوٹا لگتا ہے یہ چلان نا، 100 200 400 500 800 روپے کا، تو ہیوی چلان ہوں گے تو منطق یہ پیش کی گئی ہے کہ ہیوی چلان ہوں گے تو لوگ پھر جو ہے وہ لاز نہیں توڑیں گے۔ بھائی دیکھیں، سمپل ہے نا کہ جن بچوں کے ہاتھ سے آپ نے کتابیں چھین لی ہیں، ان کے اسکول چھین لیے ہیں، پینے کا پانی چھین لیا ہے، ان کے پاس گیس نہیں ہے،
बिजली के बिल कहाँ पहुंच चुके हैं। वो बच्चे बाइक के ब्रेक खराब होने की वजह से अपने पाँवों से बाइक रोक रहे होते हैं, तो क्या वो बच्चे 5,000 का चालान भर सकते हैं? तो खाली मुझे ये बताएं कि खाली कराची के अंदर ही क्यों इतना जुल्म और बर्बरियत लगाई हुई है? बाकी सूबा सिंध के अंदर कोई शहर नजर नहीं आ रहा। नंबर प्लेट वो कह रहे हैं आगाज यहाँ से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आगाज यहाँ से कर रहे हैं, कैपिटल शहर है ना। आपको आप बिल्कुल करें, मगर हम कहते हैं कि आप इसको 5,000 की जगह भले 10,000 करें, मगर पहले आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर करके दिखाए। आज तक आपने 17 साल में यूसी तक तो बेहतर की नहीं है, तो आपने कौन सा बजट रखा है, कौन सी रोडें बनाएंगी? हर आने वाले साल और हर मंथ के साथ साथ आपकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बिगड़ती जा रही है। आप मुझे बताएं, कोई एक यूसी दिखा सकते हैं? आप चलें कैमरा लेके कोई एक यूसी दिखा दें कि भाई ये यूसी बेहतर है और यहाँ पे हम ये सारी चीजें इम्पोज कर रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे और वजीर ये कहते हैं कि शहर के अंदर आप एमक्यूएम को ना बेसिकली हमारे बनाए गए जो पुल है ना वो नज़र नहीं आते, हमारे बहाल किए गए पार्क्स वो नज़र नहीं आते, हमारी सड़कें जो हम बना रहे हैं शाहराह भुट्टो वो नज़र नहीं आती, और दीगर प्रोजेक्ट्स जो बड़े बड़े हम कर रहे हैं। सेहत के लिए आमिर सिद्दीकी सुन तो ले, सेहत के लिए लोग दुनिया से आते हैं हमारे सूबे के अंदर अस्पतालों के अंदर, वो एमक्यूएम को नज़र नहीं आता। आप ऐसा करें कि आप जो है कल अपना कैमरा लेके लिख लें और जाके देखें हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां नहीं है, जो मरीज जा रहे हैं अब दवाइयों का बहरान आ चुका है। और जो आपने पार्कों की बात की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पार्क मेयर कराची ने सारे पार्क रेंट पे दे दिए जहाँ पे पैडल लग चुके हैं, जो कि जमात इस्लामी लेके गई है एप्लीकेशन, आज उस पर कंटेम ऑफ कोर्ट लिखला है। तो ये पार्क बनाए नहीं गई, इनको बेच रहे हैं पार्कों को, ठेकों पे दे रहे हैं। कौन से पार्क बनाए इन्होंने? वो तो सारे जहाँ पे भी जाए वहाँ पे पैडल चल रहे हैं, फुटबॉल चल रही है, हॉकी चल रही है, और सारे पार्क पेड हो गए। फ्री में तो कुछ भी नहीं हो, तो कमर्शियलाइज कर दिए सारे पार्क। और हॉस्पिटल जो है, मुझे सिविल अस्पताल की, आप कभी गए? सिविल अस्पताल जा सकते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल, सिविल सारे अस्पताल जाके चक्कर लगाते हैं। और जो एनआईसीवीडी की बात करते हैं ना, आप कभी जाए एनआईसीवीडी, अल्लाह ना करे आपको, अल्लाह ताला आपको सेहतियाब रखे, आप कभी वैसे ही चक्कर लगा लें, अंदर जाके देखें, जंग वाले बेड हैं, खून वाली चादरें हैं, जो उनके साथ एसेसरीज हैं। आप जाके अस्पताल के अंदर भी हालत तो देखें, इन्होंने करा क्या है। सर इन्हीं सूरत हाल के अंदर बेसिकली बर्डन बहुत है ना, वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान नहीं दुनिया से लोग आते हैं, तो अब हम इतना बेहतर इलाज दे रहे हैं तो लोग आ रहे हैं ना, अब उसकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसको चलाया जा सकता है, ये मौके आता है हुकूमती नुमाइंदों का। सर देखे ना, मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे पास 7 जिले हैं, कोरंगी जाएं, औरंगी टाउन जाएं, मलिर जाएं, आप किमाड़ी जाएं, क्या 7 जिलों के अंदर कोई 100 बेडेड 200 बेडेड हॉस्पिटल है हर जिले के अंदर बना हुआ है कहीं? अच्छा फिर हल क्या है? सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसकी क्या हालत है? न्यू कराची का औरंगी टाउन का जो हॉस्पिटल है कतर, उसकी क्या हालत है? लियाकताबाद जो हॉस्पिटल है उसकी क्या हालत है? न्यू कराची का जो हॉस्पिटल है उसकी क्या हालात है? आप जाए ना कैमरा लेके वहां पे। अच्छा अब इसका हल क्या है आमिर साहब? हम यही बात और यही प्रोग्राम्स करते रहेंगे, यही बातें एमक्यूएम अपोजिशन में रहेगी, हुकूमत पीपल्स पार्टी रहेगी, और हमें बताया जाएगा कि बहुत बुरा हाल है, पीपल्स पार्टी ने शहर का तबाह कर दिया, और हम यही सुनते रहेंगे, अपने अवाम अपने वोटर को यही सुनाते रहेंगे बस। सर हम कह रहे हैं, हम इसको असेंबली में लेके आ चुके हैं, अब असेंबली में इस पर बहस होगी कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हम इतना बेहतर, या हम तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह हमारा शहर हो चुका है। 17 साल में जो इस शहर की हालत हुई है, उसके बाद आप ये सिर्फ आवाम से बदला किस बात का ले रहे हैं? अच्छा एक और मजे की बात आमिर सिद्दीकी साहब, हम शहर छोड़ के जाएं। अच्छा एक और मजे की बात है सर कि ये भी जब हम डिबेट कर रहे होते हैं ना अक्सर और बेशतर, तो ये वाली बात भी आती है, मैंने कहा इसका भी जवाब आपसे ले लूँ। वो ये कहते हैं पीपल्स पार्टी के जो आपकी कोलीग्स हैं, वो कहते हैं जनाब बल्दियाती निज़ाम तो रहा ही एमक्यूएम और जमात इस्लामी के पास है, हमारा तो मेयर आज आया है, अब मामला ये इनसे कोई सवाल करे ना, क्यों नहीं बनाया इस लेवल पे शहर जब इख्तियार था इनके पास? सर देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना, आज मेयर साहब अभी नहीं आए, मेयर साहब को 5 साल हो गए, 2.5 से 3 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर थे और 2.5 साल उनको मेयर बने हुए हो गए। तो 5 साल के अंदर जो जिनकी गवर्नमेंट भी उनकी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी उनके, आप मुझे बताएं उनको काम से रोक कौन रहा है? वो क्यों नहीं शहर को बदल पा रहे? वो कहते हैं वफाक रोक रहे ना, वफाक फंड कर दे, एमक्यूएम उनके साथ इलाके में बैठी हुई है, वो फंड ही नहीं लेकर आ रही, बल्दियात को देती नहीं है, ये कहते हैं भाई इसलिए बन रहा है। आपको आप मुझे ये बताएं कि जो एनएफसी अवार्ड, जो मेरा शहर जो सिंध का कैपिटल है, जो टैक्स जमा करता है जिससे 75% मुल्क चलाया जाता है, उस टैक्स के पैसे से जब एनएफसी अवार्ड के थ्रू इनको हर महीने अरबों रुपए मिलते हैं,
तो वो कौन पैसे जमा करके देता है? क्यों वफाक से मांग रहे हैं? वफाक तो आपको हर महीने पैसे दे रहा है, तो आप अपने चीफ मिनिस्टर से क्यों पैसे नहीं मांग रहे कि लाएं 300 अरब रुपए शहर को ठीक करें? आप क्यों वफाक तो आपको हर महीने पैसे दे रहा है, आप लोग ये सवाल मुर्तजा आपसे क्यों नहीं कर रहे कि हर महीने एनएफसी के थ्रू आपको पैसे मिल रहे हैं? और आपको एक नई इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं कि इन्होंने एक टैक्स लगाया है कस्टम के ऊपर कि कोई भी माल आएगा उसमें 1.8% ड्यूटी भरनी है, जो कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के रोडों को बनाया जाएगा। उसमें 1000 अरब रुपए जमा हुए 4 सालों में, तो वो 1000 अरब रुपए कराची में कहाँ लगे हैं? तो वफाक तो आपको पैसे दे रहा है, हर महीने वापस कर रहा है, तो आप अपने चीफ मिनिस्टर से पैसे लेके क्यों नहीं काम करवा रहे? आप यही तो सवाल है जो मीडिया के लोग नहीं कर रहे मुर्तजा आपसे कि आपको हर महीने पैसे मिल रहे हैं, तो आप सीएम से मांगे ना पैसे। आप चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं पैसे मांग रहे हैं? वो जो शहर टैक्स जमा करके दे रहा है सर असेंबली में आपने कितनी दफा मांगा आमिर सिद्दीकी साहब ये सवाल का जवाब? चीफ मिनिस्टर तो आपके बराबर में बैठते हैं। आप हमारी करारदादें निकालें, आप हमारे एमपीएस की तकरीरें निकालें, करारदाद निकालें, कॉल अटेंशन निकालें, हर जगह पे आपको यही सवाल मिलेगा। और उसका जवाब क्या है सर? वो भी तो मिलता होगा सर, वो भी बता दें ताकि नाज़रीन रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। आपके सामने जवाब, आपके सामने शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हुक्मरान जमात ने थाम लिया है कि हमें शहर को ठीक नहीं करना। अब आप देखिए ना, मैंने तो आपको सिंपल मिसाल, आप ये तो मैंने आपको फैक्ट बताया ना। आप अभी फाइनेंस की वेबसाइट पे जाएं, फेडरल गवर्नमेंट की, हर महीने इनको पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो पैसा कहाँ जाता है? वो एनएफसी से तो पैसे मिलते हैं। पंजाब में तो चीफ मिनिस्टर की नहीं कि आए देख लें हमारा काम, हमारे शहर में काम क्यों नहीं नजर आ रहा? वो हमें जो पैसे मिल रहे हैं हर महीने क्यों नहीं नजर आ रहा काम? सर आज आमिर सिद्दीकी साहब, शर्मिला फारूकी साहब हैं, वो पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, आपकी कुलीग भी हैं, वो तो कह रही हैं कि जनाब बेहतर से सबसे बेहतर तो सिंध जो है ना, सूबे सिंध में अगर तरक्की देखनी है, इस तरह का उनका बयान जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है, तो वो तो ये वाली बात कह रहे हैं कि आप लोगों को बेसिकली नजर नहीं आ रहा ना, तरक्की आप लोगों को नजर नहीं आ रही। नहीं, आप मुझे तस्वीरें दे रहे हैं, हम खुद चले जाएंगे, या अगर वो साथ चलना शर्मिला साहिबा गलत कह रही भी कर सकते हैं। नहीं, चले आप बता दें कहाँ जाके देखें, आप बता सकते हैं कोई इलाका, कोई टाउन, कोई यूसी, कहाँ जाऊं मैं, बताएं। वो तो कहते हैं कि जी हम जो पुल बनाते हैं ना, ये जो बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, आप देखें, आप मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, पुल बन रहा है? ये शाहराह भुट्टो बना के जी इतना लंबा सफर लोगों को करना पड़ता था, अब हमने वो बना दी, फिर हमने 100 MGD की लाइन डाल दी कराची वालों के लिए, पानी कितने अरसे से नहीं आ रहा था, हमने किया है ये काम। कौन सी लाइन डाली है? 100 MGD की जो लाइन इन्होंने डाली है ना सर, नहीं, उससे किसको पानी मिला है? और शाहराह भुट्टो तो पीपीपी मूड पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है, उस पे आप सफर, आपने कितनी दफा सफर किया है शाहराह भुट्टो पे? मैंने 3-4 दफा किया होगा आमिर साहब। नहीं, आप विजिट करने गए, किसी काम से गए? मुझे बताएं, वो आम आदमी के काम की शाहराह भुट्टो है और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाई है। आप कह रहे हैं ये जो बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट बेसिकली पीपल्स पार्टी कर रही है, इसकी कोई अहमियत नहीं दी है, इन्होंने पैसा खर्च कर दिया। आप इसके ऊपर ना कोई प्रोग्राम रख लें, मैं आपके प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा, और पीपल्स पार्टी से भी किसी को बुला लें, ताकि बात गलत नहीं हो जाए ना। पीपल्स पार्टी के भी लोग बैठे, और जो आप 100 MGD पानी कह रहे हैं, तो वो कहाँ है? आपकी नाल वो तो बह गई है बारिश के अंदर, वो तो खत्म हो गई है, कौन सी आपकी नाल है अब? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मोहम्मद आमिर सिद्दीकी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। एमपीए थे, एमक्यूएम के खासा नाराज़ थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। बहरहाल वो आखिरी मामला था कि जी बहाल हो गई है, तो उसमें पानी आ रहा है। बहरहाल ये मैं अपने नाज़रीन के लिए रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए बात कर रहा हूँ, मगर इस वक्त नाराज़ हैं लोग वाकई में नाराज़ हैं। ये रुकन सूबाई असेंबली हैं, और आवाम के पास भी जाएँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो है वो बड़ी डिबेट सामने आती है। कहा जाता है जी टाउन को इतने अरबों रुपए मिल गए। अब आप आमिर सिद्दीकी साहब की बात सुन रहे थे कि वफाक इतने अरबों रुपए दे रहा है। समझ ये नहीं आ रहा कि शहर के अंदर जो है वो क्यों नहीं लग रही है अरबों रुपए, अगर आ रहे हैं तो। ये एक सवाल मैं आपके ऊपर छोड़े जा रहा हूँ, आप इसका जवाब लाजमी दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मगर साथ जुड़े रहिएगा, बहुत अहम स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने पेश करेंगे।